Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today, we'll also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But do remember that we do not address company-specific queries. You can call us on 2331 4444, 2342 1050 and 2331 0464. I am Vaibhav Jyotsna Srivastava and with me is my co-anchor in Hindi, Sparsh Saxena. धन्यवाद वैभव। नमस्कार। घड़ी का इशारा हो चुका है शाम 6:30 का और हम आप सभी श्रोताओं का आपके फेवरेट शो मार्केट मंत्र में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई आर्थिक, कारोबारी और शेयर बाजार से संबंधित खबरें लेकर हाजिर हैं। जैसा कि आज सोमवार है, आप हमसे शेयर बाजार और आर्थिक मामलों से जुड़े सवाल कर सकते हैं। ध्यान रहे, हम किसी खास स्टॉक और कंपनी विशेष पर चर्चा नहीं करते हैं। आप हमें इन फोन लाइंस पर कॉल कर सकते हैं। नंबर्स हैं 2331 4444, 2342 1050 और 2331 0464। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबर्स पर कॉल करने से पहले STD कोड 011 यानी 011 लगाना ना भूलें। आज चर्चा के लिए और आपके प्रश्नों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आर्थिक पत्रकार शिशिर सिन्हा। शिशिर जी, मार्केट मंत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद स्पर्श। और सबसे पहले अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ हैं वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव। Absolutely, Sparsh. We begin with the headlines. Domestic benchmark indices continue that downward trend. Sensex sheds 241 points. Nifty settles at 23,454. G20 summit begins in Brazilian city of Rio de Janeiro. Prime Minister Narendra Modi to present India's position on various global issues. And oil prices edge up today. Brent crude trades at $71.43 per barrel. घरेलू बेंचमार्क सूचकांकों में गिरावट का सिलसिला जारी। सेंसेक्स में 241 अंक की गिरावट, निफ्टी 23,454 पर बंद हुआ। ब्राजील के शहर रियो डे जेनेरियो में G20 शिखर सम्मेलन शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विभिन्न वैश्विक मुद्दों पर भारत की स्थिति प्रस्तुत करेंगे। और तेल की कीमतों में बढ़ोतरी। ब्रेंट क्रूड की कीमत $71 और 43 सेंट प्रति बैरल पर। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज के बाजार पर। घरेलू बेंचमार्क सूचकांकों में लगातार 7वें सत्र में गिरावट का सिलसिला जारी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 241 अंक की गिरावट के साथ 77,339 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 89 अंक की कमजोरी के साथ 23,454 पर रहा। BSE के मिड कैप और स्मॉल कैप आज गिरावट के साथ बंद हुए। मिड कैप इंडेक्स में 0.17% की गिरावट आई और स्मॉल कैप इंडेक्स आधे प्रतिशत से अधिक के घाटे में रहा। Domestic benchmark equity indices today ended with losses amid mixed global cues extending their losing streak to 7th consecutive session. The 30-share BSE Sensex shed 241 points or 0.31% to close at 77,339, while the NSE Nifty 50 slipped 79 points or 0.34% to settle at 23,454. The broader market at the Bombay Stock Exchange also ended in negative territory. The mid-cap index fell 0.17% and the small-cap index lost over 0.5%. In the Sensex index, 16 out of 30 companies logged losses. In the top laggards, TCS tumbled over 3%. Infosys shed over 2.8% and NTPC fell over 1.5%. Conversely, among the top gainers, Tata Steel increased by 2.3%. Hindustan Unilever rose 1.4% and Mahindra gained over 1.3%. In sectoral indices at the BSE, 11 out of 20 sectors ended with losses. In the top laggards, information technology declined over 2.3%, focused IT dropped over 2.2% and tech shed nearly 2%. Meanwhile, among the top
top gainers. Metal advanced over 2.1%, FMCG as well as realty gained over 0.6%, and auto added over 0.5%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 1,611 companies advanced and 2,486 declined, while 127 remain unchanged. At the National Stock Exchange, 42 companies hit their 52-week high, while 187 hit their 52-week low. शिशिर जी, इससे पहले कि आपके साथ इस खबर पर चर्चा करें, लेकिन हमारे साथ उससे पहले जुड़ चुके हैं दिल्ली से नील कमल। नील कमल जी, स्वागत है आपका मार्केट मंत्र में। प्लीज सवाल पूछे अपना। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले मार्केट मंत्र के सभी जो व्यवस्थापक हैं उन लोगों को वंदे मातरम, प्रणाम। सर, मेरा यह प्रश्न है कि जिस प्रकार से बीते दिनों यूएस इलेक्शन हुआ और अमेरिका से इलेक्शन के बाद मार्केट से रिलेटेड बहुत सारी समाचार आ रही थी, मार्केट फ्लक्चुएशन, अप्स एंड डाउन की उम्मीदें थी और वो हमें दिखा भी कि समय के साथ मार्केट नीचे जा रहा है। तो मेरा यह प्रश्न है यहाँ मूल रूप से, क्या जब भारत देश में इलेक्शन होते हैं तो क्या इसी प्रकार से मार्केट प्रभावित होता है, और क्या वह भारत का ही मार्केट प्रभावित होता है या वैश्विक स्तर पे सभी देश की नजर भारत पे होती है, जैसे इस समय हम पूरी दुनिया की नजर यूएस इलेक्शन पे थी? जी सर, धन्यवाद। जी नीलकमल जी, देखिए, एक बात तो आप ध्यान रखें कि अमेरिका के चुनाव से पूरे विश्व बाजार पे असर पड़ता है, केवल अमेरिका की बात नहीं है। माफ कीजिएगा। लेकिन अगर हम बात करें कि भारत में चुनाव की बात करें तो जाहिर सी बात है कि उसका ज्यादा असर भारतीय बाजारों पर हमें देखने को मिलता है, और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि शेयर बाजार किसी भी तरह की अनिश्चितता को बर्दाश्त नहीं कर पाता है, स्वीकार नहीं कर पाता है। तो जब कभी भी किसी तरह से चुनाव होते हैं, यहां तक कि जो राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, जैसे अभी आप देखिए कि 2 राज्यों के चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, शेयर बाजार की उन पर भी नजर है। और अगर किसी भी राज्य में जो केंद्र में सरकार है, केंद्र में जो पार्टी है, केंद्र में जो गठबंधन है, वो किसी राज्य में चुनाव हार जाती है तो उसका भी असर शेयर बाजार पर पड़ता है। आपका जो प्रश्न का दूसरा हिस्सा था कि क्या भारतीय शेयर बाजार के भारतीय चुनाव के नतीजों का दुनिया के दूसरे देशों के शेयर बाजार पर असर पड़ता है, शायद उस तरीके से देखने को हमें नहीं मिलता है। लेकिन हाँ, अमेरिका के जो चुनाव होंगे उसका असर हमें यहाँ जरूर देखने को मिलेगा। जी शिशिर जी, आईटी इंडेक्स जो अभी तक स्ट्रांग माना जा रहा था, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि तकरीबन 2% से अधिक गिरा है। क्या कारण है इसके पीछे? देखिए, कारण इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि अभी एक अनिश्चितता बनी हुई है कि कोई भी देश में जो आईटी पे खर्च है वो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। जी। अभी जैसे अगर आप देखें कि यूएस के चुनाव के नतीजे हैं, भले ही नई सरकार जो है वो सत्ता अगले वर्ष संभालेगी जनवरी में, लेकिन उसके बावजूद भी एक अनिश्चितता ये बनी हुई है कि क्या अमेरिकी कंपनियां उसी तरीके से आईटी पे खर्च करेंगी या अपने खर्च का जो रकम है उसे बढ़ाएंगी। तो इस अनिश्चितता की वजह से आईटी सेक्टर्स पे जो है असर पड़ा है। दूसरा यह है कि घरेलू व्यवस्था में भी, घरेलू बाजार में भी अगर आईटी सेक्टर्स को लेकर के बहुत ज्यादा जो उत्साह नहीं है, उसको लेकर के एक अनिश्चितता ये भी है कि भारतीय कंपनियां अपना कितना खर्च बढ़ाएंगी, क्योंकि दूसरी तिमाही के नतीजे जो है वो बहुत अच्छे नहीं आए हैं। The 19th G20 summit began at the Museum of Modern Art in the Brazilian city of Rio de Janeiro a short while ago. The heads of member states and representatives of international organizations will participate in various sessions and deliberate on the priority areas of this year's declaration. Several world leaders have started arriving at the venue to take part in the summit. During the event, Prime Minister Modi will present India's position on various global issues and build on the outcomes of the G20 New Leaders Declaration, as well as the Voice of the Global South summits hosted by India in recent years. Now we go over live to our correspondent Sakshi, who's covering the G20 summit in the Brazilian city. Sakshi, could you brief us about what is happening there right now? What are the sessions planned and the events which are lined up? Prime Minister Narendra Modi has just arrived at the venue. And he was received by the president of Brazil, and we had a formal handshake. And now I think the rest of the delegates will be coming, and we'll start with the inaugural session, which will be the inauguration of the Global Alliance Against Poverty and Hunger. And now it will be open for all the, not just the member states, but the other nations and organizations as well. As you may remember, that it's one of the major talking points under the Brazil presidency, and it has been pushing for this alliance for past 1 year. जी,
साक्षी, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। क्या क्या फोकस एरियाज हैं इस बार इस शिखर सम्मेलन में? देखिए, जो G20 के जो फोकस एरियाज होते हैं वो सबका विकास, सबका समन्वय और इंक्लूसिव डेवलपमेंट के बारे में, वुमेन लेड डेवलपमेंट होती है, कृषि होता है और जलवायु परिवर्तन, ये सारे जो आपके वैश्विक इशू हैं जिन पे चर्चा करना और एक समन्वय लाना बाकी इशू में बहुत जरूरी है। तो इस वर्ष भी वही है, बट फोकस पॉइंट एक तो जो ये ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी ब्राजील के अध्यक्षता में जो इनॉग्रेट होगा वो बहुत महत्वपूर्ण है। और एक दूसरा जो सेशन, एक महत्वपूर्ण सेशन वो होने वाला है जो मल्टीलेटरल हमारे बैंक्स हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें रिफॉर्म और या बदलाव लाना, ताकि डेवलपिंग नेशंस या ग्लोबल साउथ की जब हम बात करते हैं उन देशों को भी उसमें ज्यादा प्रतिनिधि मिल सके। Thank you so much, Sakshi, for joining in with Market Mantra, and we'll get back to you on these stories and more in the future. Thank you so much. The theme of G20 Summit this year is Building a Just and Sustainable World. In the inaugural session on day one today, global leaders will hold discussion on the Global Alliance on Hunger and Poverty. Prime Minister Modi reached Rio de Janeiro this morning on the second leg of his three-nation tour. After concluding his visit to Nigeria, he received a warm and zealous welcome by the Indian diaspora on his arrival in the Brazilian city. In social media posts, Mr. Modi said he looks forward to the summit deliberations and fruitful talks with various world leaders. And I'm sure, Shashaji, that these G20 summits and other global meetings that are there, and the great precedent that India has held or has put up a great show in the last year's G20 presidency when it was the leader here and the host in New Delhi. I think it will continue, and the topics like cybersecurity, like cohesive and holistic sustainable development, those topics will also gain momentum. Yes, and it's a leadership summit, so all eyes will be on the declaration, what kind of declaration coming. Absolutely. We are expecting that the declaration will talk about the geopolitical situation. The declaration will also review what were the resolution approved or adopted in Delhi Leadership Summit, which held last year. So our focus would be to see whether the declaration which was adopted in Delhi, what kind of progress is there, what kind of movement is there. For example, there was a talk about the regulation of cryptocurrency. So whether this particular resolution or whether press communique will take a call on what kind of progress has taken place or what need to be done on this regard, because there is too much uncertainty, and considering the result of US election has an impact on the crypto prices. Now we are seeing almost $1 lakh a piece of crypto. So whole world is waiting that what kind of resolution they are going to adopt in crypto, then the public digital infrastructure, then on the sustainability, because at this moment the sustainability is a very, very big issue, and the theme of this leadership summit is also a sustainable world. So I believe that these are the issues, these are the focus areas of the declaration which may come tomorrow. And I believe that to focus on the results of these focus areas, we will have to wait a little more, maybe the first quarter of 2024-25 till March, till the new government sets in the USA, and we have the declarations from Brazil as well. See, these declarations are always talking about the intentions, and these declarations also give about the what kind of roadmap each and every country has to take. So this declaration will give an idea and the roadmap what is going to happen in next 12 months, next 18 months. So that is what you can expect tomorrow evening when the declaration will be published. जी, और बेंगलुरु से हमारे साथ जुड़ चुके हैं अयान जी, स्वागत है आपका मार्केट मंत्र में। प्लीज सवाल पूछिए अपना। थैंक यू स्पर्श जी। मेरा नमस्कार मार्केट मंत्र टीम को। मेरा नमस्कार शिशिर जी को भी नमस्कार। सर, मेरा आपसे ये सवाल है, सर अगर गोल्ड को देखा जाए, पहले एक समय ये होता था कि
जब ये कहते थे लोग कि जब इक्विटी मार्केट नीचे जाती थी तब गोल्ड का प्राइस थोड़ा ऊपर जाता था एक समय पे, तो उस समय लोग गोल्ड को एज ए हेजिंग इंस्ट्रूमेंट खरीदते थे। लेकिन सर अगर आप आज के डेट पे देखेंगे तो अभी के लिए थोड़ा सा मार्केट नीचे जा रहा है, लेकिन पिछले कुछ महीने तक गोल्ड और इक्विटी मार्केट दोनों एक साथ 1 लाख के तरफ रैली कर रही थी, जैसे आप लोग सोच रहे थे कि हु इज गोइंग टू हिट 1 लाख फर्स्ट। सर आगे जाके आप गोल्ड को कहाँ देखते हैं यहाँ से, क्योंकि अभी मार्केट नीचे जा रहा है, अभी गोल्ड कहाँ पे मतलब सिचुएटेड है, एंड आगे जाके आप गोल्ड को कहाँ देखते हैं? क्या आने वाले समय में भी यही ट्रेंड बरकरार रहने वाली है? और उसमें सर मैं ये भी जानना चाहता हूँ, क्या यूएस में जो गवर्नमेंट का चेंज होने वाला है उसके रिलेटेड कोई डिसीजन का असर गोल्ड प्राइसेस पे पड़ सकता है? और सर इसके पीछे क्या रीजन है कि गोल्ड का प्राइस और इक्विटी मार्केट दोनों एक साथ ऊपर जा रहा है? देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि अमूमन दोनों के बीच में एक उल्टा रिश्ता दिखता था कि शेयर बाजार ऊपर जा रहा है तो सोना नीचे जाता था, शेयर बाजार नीचे जा रहा है तो सोना ऊपर जा रहा होता था। अभी हम देख रहे हैं कि दोनों में एक साथ हमने तेजी देखी। देखिए, एक मोटी बात ये होती है कि जब जब विश्व में अनिश्चितता का माहौल जितना तेज होता है, सोने के भाव उतने ही ऊपर जाते हैं, क्योंकि सोने से ज्यादा बेहतर कोई हेजिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं माना जाता है। और आपने एक चीज और नोटिस किया होगा कि दुनिया भर के सेंट्रल बैंक सोने का भंडार बड़ा करने में जुटे हुए हैं और अपने भंडार में सोना जोड़ने में जुटे हुए हैं, और इसमें चीन भी काफी आगे है, तो उसका असर सोने के भाव पर देखने को मिल रहा है। आने वाले अगर 3 से 6 महीने की बात करें या साल भर की बात करें तो मुझे लगता है कि सोने में तेजी ही रहेगी। और जैसे जैसे कोई भी, अगर आप देखेंगे दुनिया के किसी भी कोने में लड़ाई या किसी भी तरह के तनाव की खबर आएगी तो उसका शेयर बाजार पे असर पड़ेगा और उसका सोने पर भी असर पड़ेगा, लेकिन सोने के भाव उसमें ऊपर जाएंगे और हो सकता है कि शेयर बाजार नीचे आए। दूसरी बात जो आपने एक महत्वपूर्ण बात कही कि अमेरिका के फैसलों का ऊपर क्या असर पड़ेगा। देखिए, अभी देखिए अमेरिका में जैसे जैसे कहते हैं ना कि भारत से या जैसे भी इमर्जिंग मार्केट है, पैसा लोग निकाल करके वहां पर लगाए, अभी सोने के बजाय वो अमेरिका में लगाना चाहेंगे, क्योंकि वहां पे ट्रेजरी जो यील्ड है वो काफी हाई चल रहा है, तो वहां के फैसले का उस तरीके का असर नहीं। और दूसरा ये भी होगा कि उसका असर क्रिप्टो के ऊपर भी पड़ेगा, और अभी आपने देखा होगा कि क्रिप्टो के भाव काफी तेजी से आगे बढ़े हैं। तो 2 विकल्प ऐसे हैं जहां पर ज्यादा पैसा जाएगा, सोना उसके बाद आएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा कि कहीं भी कोई आशंका तनाव बना तो लोग सोने में पैसा लगाएंगे। जी, और अगले कॉलर हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं विजय जी, स्वागत है आपका मार्केट मंत्र में। प्लीज सवाल पूछिए अपना। सर गुड इवनिंग मार्केट मंत्रा टीम। मेरा एक क्वेश्चन है, मैं एक शेयर को नोटिस कर रहा था, पिछले 1 मंथ से ट्रैक कर रहा था और काफी अच्छा रैली देने के बाद वो अचानक से आज वो 0 हो गया। तो जस्ट वांटेड टू नो कि इनके गवर्नमेंट का कुछ नजर होता है, क्योंकि काफी सारे लोग उसको रैली देख के उसको फॉलो कर रहे होंगे और उसमें काफी अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं, आई एम श्योर। और आज अचानक वो 0 हो गया, तो ऐसा क्या मीन्स, ऑफ कोर्स इट्स वेरी रेयर, बट इस पे क्या गवर्नमेंट रेगुलेशंस का कोई नजर होता है, कोई कार्रवाई होती है ऐसे कंपनीज पे, या मीन्स? देखिए विजय जी, देखिए शेयर बाजार पर नजर रखने की जिम्मेदारी सेबी की है, और कभी भी इस तरह का जब अप्रत्याशित तौर पर किसी के भाव में तेजी दिखती है, किसी के भाव में बहुत ज्यादा नरमी दिखती है, तो वहां पर सेबी जरूर उचित कदम उठाता है। और आपको पता है कि बाजार में एक व्यवस्था है जिसको हम लोग सर्किट ब्रेकर के नाम से जानते हैं, कि अगर भाव एक निश्चित प्रतिशत के नीचे जाता है तो सर्किट ब्रेकर लगाया जाता है। मैं स्पष्ट नहीं हूं कि किस कंपनी की बात की जा रही है, क्योंकि हम लोग किसी कंपनी स्पेसिफिक पे इस कार्यक्रम में चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो 0 करने की बात है उसके पीछे एक वजह ये भी हो सकती है कि या तो वो डिलिस्टिंग की तरफ बढ़ रहा हो, तो शायद उसका एक कारण हो सकता है। स्पष्ट तौर पे अभी मेरे लिए बताना बहुत ही मुश्किल है कि किस कंपनी में ये हुआ है, लेकिन हम रेगुलेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर कह सकते हैं कि सेबी की नज़र जितने भी करीबन 6,750 के लगभग में कंपनियां जो कि शेयर बाजार में लिस्टेड हैं उनके ऊपर रहती है। जी, और अब नज़र डालते हैं हम अपनी अगली खबर पर। रुपए का हाल जान लेते हैं। विदेशी मुद्रा बाजार में रुपये आज अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 84 रुपये और 39 पैसे के स्तर पर दर्ज किया गया। डॉलर इंडेक्स अंतर्दिवसीय कारोबार के दौरान 106.74 के स्तर पर था। और अब हम चलते हैं बेंगलुरु अपने अगले कॉलर की तरफ, एनआर प्रसाद जी, स्वागत है आपका मार्केट मंत्र में। प्लीज सवाल पूछिए। हाय, गुड इवनिंग, दिस इज एनआर प्रसाद फ्रॉम बैंगलोर। Good evening, Mr. Sinha, just 2 questions. See, last week, one of the experts, in particularly Moody's,
rated India's GDP will be around 7.2, and even others a minimum of 7% GDP for the financial year 2024-25. But on the contrary, 30-40 billions taken away from the FDI. If the Indian economy is so robust, minimum of 7% of GDP, but still market is not reviving. Any specific reason for this? My second question is, in case if this revival, which is the two sector you can name which can take a faster, I repeat, faster revival in the next 4.5 months? Thank you. These are my two questions. Okay. Talking about the first question about the GDP growth, of course, the GDP growth is expected to be around 7% or 7% plus during the current fiscal. But please remember the kind of geopolitical situation we are seeing and the kind of interest rate we are seeing in the US, that is having a impact on the FPI withdrawal from the Indian stock market. Coming to your second specific question, that which are the two sectors, at this moment I would still bet on the IT sector, because IT sector I believe that there are a lot of potentials and it has already reached what we can as the lowest level. So there is a strong possibility of going up in the IT sector. And the second one, I would believe that public sector banks are the other sector where I can bet and where I can put my money for next 4.5 months. जी, अब नजर डालते हैं अपनी अगली खबर पर। भारत G20 देशों में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। 7% वृद्धि दर के साथ भारत की अर्थव्यवस्था 2024 में सबसे तेज गति से बढ़ने की आशा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में भारत सरकार के बयान के अनुसार ये उपलब्धि भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था को उजागर करती है, जो वैश्विक चुनौतियों के बीच अपनी मजबूती और तेज गति से विकास को प्रदर्शित करती है। And let's talk to our next caller who's calling from Jaipur right now. Jitendra is on the line. Jitendra, welcome to the show. Please ask your question. हाँ, हेलो सर। सर ये बोला था कि निफ्टी 50 का आईटी का सेक्टर है, तो 1200 रुपया के भाव से लिया, फिर 1500, फिर 1700, तो मैं हर एक महीना उसमें लेते जा रहा हूँ। निफ्टी 50 का भी 1700-1800 रुपया भाव चल रहा, तो क्या ठीक है? और दूसरा लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है। और दूसरा कि किसी स्टॉक में अगर 30% हमको प्रॉफिट हो रहा है तो क्या उसको सेल कर देना चाहिए? ओके, मैं आपके दूसरे सवाल से उठाता हूं। आपने कहा 30% का मुनाफा हो रहा है, तब भी आप इंतजार कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अब आपके लिए मैं कोई सीमा तय नहीं कर सकता। तो देखिए, स्टॉप लॉस तो सभी लोग करते हैं, स्टॉप गेन भी तो लगाइए। हम लोग हर चीज में शेयर में देखते हैं कि घाटा कहाँ हो रहा है वो हम तय कर लेते हैं, मुनाफा कितना हो रहा है वो तय नहीं कर पाते हैं। तो थोड़ा सा इस पे ध्यान रखिए। और मेरा मानना है कि कुछ पैसा तो निकाल ही लीजिए, 30% छोटा मोटा मुनाफा नहीं होता है। दूसरी बात, अगर आपने कहा कि एक जो पर्टिकुलर आपने इंडेक्स और पर्टिकुलर आईटी सेक्टर की बात की, देखिए हम इंडेक्स या पर्टिकुलर इंडेक्स की बात नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, हम इतना ज़रूर कह सकते हैं कि आईटी सेक्टर में संभावनाएं काफ़ी बेहतर है और अगले 6-8 महीने साल भर में आईटी सेक्टर में उम्मीद काफ़ी ज़्यादा है। दिल्ली से हमारे साथ राकेश जुड़ चुके हैं। राकेश जी, स्वागत है आपका मार्केट मंत्र में। प्लीज सवाल पूछिए। नमस्कार सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी प्रेसिडेंट ट्रम्प के जीतने के बाद जो मार्केट में, पूरे वर्ल्ड की मार्केट में उथल पुथल मची हुई है, और जब एक बार ट्रम्प पावर में आ जाएंगे और उसके बाद जब ये मार्केट थोड़ा शांत हो जाएगी, तो भारतीय नजरिए से हो जाए जिन्हें ट्रम्प के आने के बाद में, जिन्हें मतलब आगे संभावना है कि वो आगे बढ़ेंगे, और कुछ ऐसे सेक्टर भी हैं क्या जो नुकसान में जा सकते हैं? देखिए, नुकसान की बात और मुनाफे की बात अगर मैं कहूं कि नुकसान की चर्चा हम ना करें तो बेहतर है, क्योंकि ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो और भी कई फैक्टर पर डिपेंड करता है। लेकिन एक सेक्टर जो मैं बार बार अभी कह रहा हूं, आपके पहले भी जो 2 कॉलर्स थे उनके बारे में सवाल के जवाब में मैंने कहा कि आईटी सेक्टर है जहां पर संभावनाएं काफ़ी अच्छी दिख रही हैं, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में उसमें थोड़ी बढ़ोतरी होगी। रहा सवाल कि जब ट्रम्प की सरकार पूरी तरह से वो सत्ता ग्रहण कर लेंगी, उसके बाद बाजार पे क्या असर होगा, ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि वो किस तरह की नीति अपनाते हैं। खास तौर पे जो चीन को लेकर के जो चर्चा है वो काफी महत्वपूर्ण होगा, उस पर पूरी दुनिया की नजर है। And we have a next caller from Noida. Pankaj is joining us in Market Mantra. Pankaj, please ask your question. हेलो सर, नमस्कार। हाँ जी, प्लीज अपना सवाल पूछिए। हेलो, नमस्कार सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि शेयर मार्केट में जब किसी भी कंपनी के जो शेयर होते हैं उनकी कीमत
उनकी कीमत कौन डिसाइड करता है और कितना प्राइस होना चाहिए, इस चीज का फैसला कौन लेता है? और दूसरा क्वेश्चन एक मेरा है कि अगर हम एसआईपी के जरिए इन्वेस्टमेंट करते हैं शेयर मार्केट में, तो उसमें रिस्क कितना है, मतलब चांसेस है? देखिए पंकज, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप अगर शेयर बाजार की कीमत की बात करते हो तो उसको दो हिस्सों में देखना होगा आपको। एक आपका आईपीओ है। आईपीओ में जाहिर सी बात है कि मर्चेंट बैंकर कंपनी मिल करके प्राइस बैंड देते हैं, आप बोली लगाते हैं और फिर इशू प्राइस तय होता है। जहां तक बाजार की बात है, जब वो कंपनी आपको शेयर दे देती है तो शेयर बाजार में मांग और आपूर्ति, जो अर्थशास्त्र का मूल सिद्धांत है, उसके आधार पर उसकी कीमत जो है वो तय होती है। And moving over to our next story now, the National Youth Festival 2025 will be celebrated as Vikasit Bharat Young Leaders Dialogue on the 11th and 12th of January of the next year. Union Minister for Youth Affairs and Sports, Dr. Mansukh Mandaviya, announced this while addressing a press conference in New Delhi today. आइए अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर। एशियाई शेयर बाजारों में आज मिला जुला रुख देखने को मिला। जापान के निकेई में 1.1% की गिरावट दर्ज की गई। सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स 0.33% नीचे रहा और चीन का शंघाई कॉम्पोजिट 0.21% फिसला। वहीं दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 2% बढ़ा और हांगकांग के हैंगसेंग में 0.7% की बढ़त देखने को मिली। वहीं यूरोप के शेयर बाजारों में भी आज मिला जुला रुख देखा गया। अंतिम समाचार मिलने तक लंदन का फुटसी 0.2% बढ़ा। वहीं जर्मनी का डैक्स और फ्रांस का कैक 0.1% से अधिक के नुकसान में कारोबार कर रहे थे। A delegation from International Monetary Fund (IMF) has arrived in Sri Lanka for conducting the third review of the island nation's financing program. The team, led by IMF's senior mission chief Peter Brewer, is expected to assess Sri Lanka's economic policies, progress on ongoing reforms, and the implementation of previous agreements with the IMF. Upon successful completion of the review, the IMF is expected to release the next installment of the loan to Sri Lanka. IMF had approved a $2.9 billion extended fund facility available to Sri Lanka over a 48-month period in tranches to help its economy recover from the economic crisis. गाजियाबाद से हमारे साथ राजेंद्र जुड़ चुके हैं। राजेंद्र जी, स्वागत है आपका मार्केट मंत्र में। प्लीज संक्षिप्त में अपना सवाल पूछें। हाँ जी, शिशिर नमस्कार। नमस्कार सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, दो बातें पूछनी है। एक आपकी पर्सनल बात की है, जैसे कि आपने लास्ट टाइम राय दी थी कि नए कस्टमर को इस शेयर मार्केट में नहीं आना चाहिए, क्योंकि जिसको तैरना नहीं आता उसको इस मार्केट में नहीं आना चाहिए। क्या नए श्रोता को क्या पहले आप जैसे लोगों की हेल्प नहीं मिल सकती क्या? और दूसरा मेरा सवाल क्या है कि यूक्रेन और रूस के ये युद्ध हो रहा है आपस में, तो इससे हमारे देश में कौन कौन सी चीजों पे असर पड़ रहा है? कैसी कैसी जो केमिकल है या तेल है काफी महंगे हो गए। देखिए, हमारा हमेशा से ये राय रहा है कि पैसा आपका है, जहां पे लगाएंगे कम से कम ये तो समझ हो कि आप कहां लगा रहे हैं। किसी के कहने पे पैसा लगाते तो वो तो उचित नहीं है ना। तो मेरी इसीलिए राय थी कि जिस बात की आपको समझ ना हो वहां पे आप ना जाएं, उतना ही बेहतर होगा। And moving over to our next story, oil prices edged up today after tensions between Russia and Ukraine intensified over the weekend. Brent crude was trading over 0.5% at $71.43 per barrel, and the WTI crude gained over 0.3% to trade at $67.24 per barrel when reports last came in. और सोने और चांदी का हाल जान लें तो सराफा बाजार में सोना आज बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। अंतिम समाचार मिलने तक भारत में 24 कैरेट सोना 0.76% बढ़कर 74,690 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था। वहीं चांदी 0.52% बढ़कर 89,420 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज की गई। शिशिर जी, सोने पे आपका शॉर्ट कमेंट चाहेंगे कि कैसा आप देख रहे हैं सोना आने वाले समय में? सोना आने वाले समय में एक बात पर निर्भर करता है, दुनिया में जितनी अनिश्चितता बढ़ेगी सोना उतना ही ऊपर जाएगा। इसको गॉड्स करेंसी भी कहते हैं। जी, तो श्रोताओं, अब वक्त है आज की इस चर्चा को यहीं विराम देने का, और क्योंकि अब घड़ी इजाजत नहीं दे रही है। शिशिर जी, कार्यक्रम में आने के लिए और शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और अंत में हेडलाइंस के साथ हैं एक बार फिर वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव। Domestic benchmark indices continue their downward trend. Sensex sheds 241 points. Nifty settles at 23,454. G20 summit begins in Brazilian city of Rio de Janeiro. Prime Minister Narendra Modi to present India's position on various global issues. And oil prices edge up today. Brent crude trades at $71.43 per barrel. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, Namaskar.
Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra.